हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्त अपने इस चैनल पे कि प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन की जो जर्नल एंट्री होती है उसे कैसे याद रखते हैं, कैसे उस जर्नल एंट्री को पास करते हैं दोस्त। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन के पहले के जो प्रीवियस 2 वीडियो मैंने आपको बना के दिए दोस्त, उन वीडियो को देखिए। मैंने वहां पे स्टेप्स बताया हाउ टू मेक द जर्नल एंट्री। नाउ अब आपको बताया कि जर्नल एंट्री क्या है दोस्त उसके अंदर, और टोटल हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज आर देयर, what you had to do and how you had to remember the journal entry. No need to by heart all the journal entry. You just had to think about the techniques how to remember it, right? So when you know the techniques how to remember it, then it is easy for you to do any sum when you are going to solve the problem, right? So first of all we have to start the video and see how it is. First of all, I told you when you are going to redeem the preference shares, at that time you have to see whether the shares is redeemable or irredeemable, because we know the irredeemable preference shares cannot be redeemed. Now the Company Act 2013 that is also decided you are not, the company cannot issue the irredeemable preference shares, right? They had to issue only the redeemable preference shares which have the specific period of time. After the specific period of time, the company has to redeem the preference shares, isn't it? So first of all that we have to see into the balance sheet whether the shares is redeemable or not. If the shares is redeemable, then only it will be redeemed. Second thing, if the shares is not fully paid up, you have to make the fully paid up by making the final call and receiving the final call, right? When you are making the call, you have to make the call and you receive the final call. After that, you have to see whether the company has sold any assets. For example, if the company sold assets like as an investment, you sell it. Whatever the profit will come from there, that profit is going to be utilized as a free reserve. And if there is a loss after selling of the investment, that loss should be deducted from the free reserve. Right? Third, what you have to do next step, you have to be now see whether the company has done any fresh issue of the shares or debenture. Right? So if you have a fresh issue of debenture, you can make the fresh issue of debenture, but that debenture cannot be utilized to create the redeem the preference shares. Right? Only the amount of the debentures will use while for payment of the preference shares holder. Right? But when you are thinking about the fresh issue, the company must have to issue the fresh issue as the equity shares if they are going for the fresh issue. So why the company is going to issue the fresh issue? Because sometimes company doesn't have the sufficient profit. Even though they have the sufficient profit, but they are thinking partly they are going to utilize their free reserve and partly they are going to utilize by the fresh issue. So when the company is going to do the fresh issue, you have to pass the entry for the fresh issue, right? So how you are going to do the fresh issue? Yes. Now the issue is what? The company is going to sell the shares. When the company is going to sell the shares, at that time company will receive some money, right? So whenever the company receives the money, that money is called as it's a real account, and the real account, as per the real account rules, what will happen? That means the bank account is always debited. Whenever the company receives the money, the bank account is always debited. When the company is going to pay the money, the bank account is always credited as per the real accounting rule. Right? The company is going to issue the shares, company will receive the cash. So cash or bank account debit. Then for what purpose, from where they are going to receive the money? By issue of the equity shares. So equity share capital is going to be credited. Right? And if the company is going to issue on the premium, that premium is also created, right? So the next step is what? You are going to pass the journal. You have to make the transfer of claim of the preferential holder. That means the capital as well as the premium or redemption of the preferential, that both the things should be transferred into the equity shareholder account. After that, you are going to provide the premium or redemption out of the non-divisible profit. If the non-divisible profit is not sufficient, you can use the divisible profit also, right? Next step is what? You have to
create a CRR. How you are able to create the CRR? First of all, see how much is the total capital of the preference share which you are going to redeem. Out of that, how much you have done the fresh issue. So you have to deduct that fresh issue capital, and whatever the remaining amount, that is utilized for that is the amount which you have to create through the CRR. And the CRR is created out of what? Out of the free reserve, right? And after that, what you have to do? You have to settle the claim. That's it. And later then, if there is an issue of bonus, you can issue the bonus shares. So how you are able to issue the bonus share? The bonus share is issued out of the divisible profit only, right? If there is a divisible profit, then it's okay, right? And it is called as what? By capitalization of the profit. The bonus is issued only maybe to the equity share, the existing shareholder, and maybe the both type shares. It depends upon the company to company. The company is giving maybe to the existing shareholder as well as to the new fresh issue shares also. And sometimes the company is giving the information, no, we had to give only the existing shareholder as a bonus shares, right? So the bonus shares you have to provide by capitalization of profit. Be remember all these words while you are passing the entries. So you have to remember all these sequence, and in this sequence, if you are passing the journal entry, the sum is always right. There is no chance to be a wrong sum. Clear? So let's the journal entry. First, पहली जर्नल एंट्री, राइट? तो जितना चीज दोस्त मैंने आपको इंग्लिश में बताया है, अगर आपको नहीं समझेगा तो प्लीज आप कमेंट्स में कीजिए, आई विल रिवाइज इन हिंदी, ठीक है? मैं आपको फिर भी हिंदी में बताते चलूंगा। पहली जर्नल एंट्री जो आपको मारनी होती है दोस्त, उसको आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले वो जो जर्नल एंट्री मारनी है वो होती है कि आपको देखना है क्या शेयर फुली पेड अप है, नहीं है तो आपको पहले फुली पेड अप करना पड़ेगा, ठीक है? याद रखिए ये चीज फिर प्रेफरेंस शेयर के पहले लागू होता है, लेटर अगर इक्विटी शेयर के साथ में कुछ होता है तो उसको बोलेगा तो फुली पेड अप करना है, वरना इक्विटी शेयर होल्डर को फुली पेड अप नहीं करना है। यानी इक्विटी शेयर को फुली पेड अप करने की जरूरत तब होगी जब वो बोलेगा, नहीं बोला नहीं करना है, खाली आपको प्रेफरेंस शेयर को ही फुली पेड अप करना है, याद रखिए, ठीक है? वो बहुत जरूरी है, कंपनी नॉर्म्स है दोस्त, तभी उसको करना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको शेयर्स को फुली पेड अप करना है कैसे करेंगे? तो यहां लिखेंगे सपोज 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, हम लोग क्या लिखेंगे? 9% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है दोस्त? तो ये आपकी पहली एंट्री होगी, इसको लिखेंगे बीइंग कॉल मेड, बीइंग फाइनल कॉल मेड, फाइनल कॉल कर दिया आपने, अब इसको कॉल मनी रिसीव कर ली, तो कॉल मनी रिसीव करेंगे दोस्त, रिसीव वर्ड आ गया मतलब पैसा आना है, तो यानी हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर किस वजह से पैसा? बिकॉज ऑफ फाइनल कॉल, सो 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखिए ये जो चीज यहाँ पे डेबिट हुई है इसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, हो गया दोस्त, पैसा आ गया आपको, राइट? ठीक है, पैसा आ गया आपको। थर्ड जर्नल एंट्री दोस्त, अब हम लोग को क्या करना है इसके अंदर? अब मैंने आपको कहा कि फुल्ली पेड अप हो गया, यस। आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट सेल किया है, प्रॉफिट भी सेल किया, गुड। अगर इन्वेस्टमेंट सेल किया आपको इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री मारनी पड़ेगी, इसको लिख दो दोस्त, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड है, ये तो हो गया रिसीव्ड, ठीक है? देखिए थर्ड जर्नल एंट्री सर। अब थर्ड में क्या अगर हमारे पास रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये प्रॉफिट में बेचा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में होगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट रूल आता है, इनकम के अंदर आता है, इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट रूल लगता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो आपको गेन हुआ, यही वजह से प्रॉफिट एंड लॉस कहां जा रहा है? क्रेडिट में जा रहा है दोस्त। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? तो ये हमारी हो जाएगी दोस्त, इसको लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये मेरा 3 हो गया।
चौथी जर्नल एंट्री दोस्त मैंने आपको क्या कहा कि फ्रेश इश्यू करनी। चलिए फ्रेश इश्यू है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट इसको बोलते हैं बीइंग फ्रेश इश्यू मेड, बीइंग फ्रेश इश्यू डन लिख दिए, ठीक है, यानी हम लोगों ने फ्रेश इश्यू कर दिया दोस्त। क्या करके फ्रेश इश्यू की एंट्री है ये हमारी चौथी एंट्री हो गई। अब हमारी पांचवी एंट्री दोस्त, अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रांसफर क्लेम करना है, ठीक है। चलिए अब हम अगर बोलते हैं ट्रांसफर क्लेम, तो ट्रांसफर क्लेम क्या होगा, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इसको हम बोलते हैं दोस्त बीइंग क्लेम ट्रांसफर, बीइंग क्लेम ट्रांसफर्ड, ठीक है, बीइंग क्लेम ट्रांसफर। सिक्स एंट्री आएगी दोस्त। सिक्स एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, ये प्रीमियम को प्रोवाइड करना है। ध्यान दीजिए ये कहां पे डेबिट में है, तो इसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और ये प्रीमियम अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट है तो इससे प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप डिविजुअल प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सभी क्या हमारे डिविजुअल प्रॉफिट है, उनको भी यूज कर सकते हो जब अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम पर्याप्त नहीं रहेगा। और अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम होने के बावजूद उसको यूज कर लिया तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, समझो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज करता हूं तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं, देखिए इसको क्या क्रेडिट लाई, देखिए खाली अपना हाथ खुद घुमाइए, इसको क्रेडिट ला देंगे दोस्त। अब ये एक एंट्री से 3 एंट्री होगी दोस्त, देखिए पहली एंट्री हुई है, अब देखिए 3 एंट्री और होगी इससे, टू प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है दोस्त। सातवीं एंट्री हमारी क्या होगी, इसको बोलते हैं बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड, बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड, यानी आपने क्या कर दिया, प्रीमियम दे दिया। अब हमारी सातवीं एंट्री क्या होगी, देखिए अभी हमारा प्रेफरेंशियल है, ये कैपिटल से इस कैपिटल को मैच करना दोस्त। देखिए यहां पे अगर समझो मेरा 5 लाख होता, 5 में से अगर मैंने 3 लाख का फ्रेश इशू किया होता, कितना 5 लाख की मुझे जरूरत है, अगर 3 लाख का मैंने फ्रेश इशू किया है तो मुझे कितना रुपया और चाहिए, 2 लाख रुपया, ठीक है। 5 लाख का कैपिटल चाहिए था मुझे, लेकिन 3 लाख रुपया मैंने इक्विटी से ले लिया तो 2 लाख और चाहिए, यानी हमें सीआरआर खाली 2 लाख से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करें, सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, किससे क्रिएट कर रहे हैं उसको नाम लिखे, जैसे मान लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने क्रिएट किया, या फिर जर्नल रिजर्व लेके किया, जर्नल रिजर्व अकाउंट। कभी कभी रेवेन्यू रिजर्व दिया तो 200 भी लिख सकते हो, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन दिया तो भी आएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब देखिए देना आपको 2 ही लाख है दोस्त, क्योंकि 3 लाख आपने यहां से कर दिया। मैं बार बार कहूं, देखो सपोज अगर हमें 5 लाख यहाँ कैपिटल चाहिए, 5 में से अगर 3 लाख मैंने इक्विटी से दे दिया है तो 2 ही लाख मुझे क्रिएट करना। 2 लाख इनमें से कोई भी चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो, और इनको क्या करना है, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं इसको, ठीक है दोस्त। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की एंट्री हो जाएगी, यानी इसका शॉर्टकट नाम क्या है दोस्त, CRR, ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं CRR क्रिएटेड। नाउ 8वीं एंट्री मेरी क्या होगी, अब देखिए ये कैपिटल से ये कैपिटल प्लस CRR से चला गया, प्रीमियम से यहाँ पे प्रीमियम चला गया, अब बचा कौन दोस्त, ये बचा ना, ये हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट है। अब इसको डेबिट कर दो, 9% प्रेफरेंशियल होल्डर, प्रेफरेंस शेयर
होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मेरी बेसिक जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, बेसिक जर्नल एंट्री हो गई दोस्त। तो इसे आप एक बार देख लीजिए। पहले क्या करना है, मुझे शेयर्स को फुली पेडअप करना है। उसका कॉल, मतलब फुली पेडअप करने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल मैंने रिसीव किया, उसका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, फ्रेश इश्यू किया, ये क्या रहा, ट्रांसफर ऑफ क्लेम कर दिया, प्रोवाइडिंग प्रीमियम हो गया मेरे पास में, और क्रिएटिंग सीआरआर हो गया। देन इक्विटी शेयर होल्डर को क्लेम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर दिया, क्लेम सेटल कर दिया। इसको बोलते हैं दोस्त बीइंग क्लेम सेटल, बीइंग क्लेम पेड, क्लेम पेड, पेड लिख दो, सेटल लिख दो। ठीक, ये 8 एंट्री दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 9वीं 10वीं एंट्री में आपको फटाफट बताता हूं और देख लीजिए, बहुत इजी देखते हैं। जब सब सिखाए तो आपको और भी इजी लगेगा दोस्त, कि जब नंबरिंग पुट करूंगा यहाँ तो आपको लगेगा अरे यार बहुत इजी था और कितना इजी चीज सीख रहे हैं आप। ठीक है, एक बार 2 बार खाली आप रीड करना, जैसे ही समझ सिखाऊं तो ध्यान दोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद फिर आगे करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली एंट्री। अभी तक मैंने आपको 8 एंट्री लिखी है दोस्त, अब हम आपको 9वीं 10वीं 11वीं एंट्री जो भी वो बता दे रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बोनस इश्यू का। देन आपको डिबेंचर अगर रिडेम्पशन बोल दिया इसी में तो कर सकते हो इन बिटवीन। देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको बोनस बोलता है, ठीक है, बोनस इश्यू, बोनस इश्यू का। अब दोस्त बोनस इश्यू कैसे करेंगे, सीधा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू, ये 9th एंट्री है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ कभी कभी लोग प्रीमियम देते हैं, अगर देते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर बोला है प्रीमियम पे इश्यू किया है बोनस तो प्रीमियम आएगा, नहीं बोला है तो प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 10वीं एंट्री देखते हैं दोस्त। 10वीं में क्या आएगा, अब ये बोनस कहां से प्रोवाइड करेंगे, बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, याद रखिएगा, बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वर्ड याद रखिए, काफी ज्यादा पूछा आता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो बोनस इज प्रोवाइडेड बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है, उसको बोलते हैं बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी बोनस शेयर को देना है दोस्त, उनको कैश में नहीं देना है, फॉर्म ऑफ शेयर देना, और उस शेयर को देने के लिए क्या करना है, आपको सीधा कैपिटलाइज कर देना प्रॉफिट को। ठीक है, चलिए तो अब हम अगर बोनस देने जा रहे हैं तो क्या देंगे, समझो मैं अपने सीआरआर से दे रहा हूं, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट। ठीक है, सीआरआर का फुल फॉर्म पता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मान लीजिए अगर आप पैसा शॉर्ट पड़ा तो मैंने ले लिया, समझो जर्नल जैसे ले लिया, तो जर्नल और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर। देखिए ये जो डेबिट है इसको आगे क्रेडिट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपको हो गया, ये बोनस प्रोवाइड हो गया। ठीक है, इसको ले बीइंग बोनस प्रोवाइडेड। अब ये हो गया दोस्त बोनस प्रोवाइडेड, बोनस प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पे 11, अगर माने डिबेंचर बोल दिया इन बिटवीन, कभी भी एंट्री देते भाई डिबेंचर रिडीम करो, कुछ नहीं करो दोस्त, बोल लीजिए 10% डिबेंचर, पहले क्लेम ट्रांसफर फिर उसको पेमेंट कर दो, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सपोज ऐसा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। ये हो गया क्लेम ट्रांसफर, बीइंग क्लेम ट्रांसफर। ठीक है, ये क्लेम ट्रांसफर हो गया। अब 12वीं एंट्री में क्या करूंगा, इसको पेमेंट करना है ना, तो सिंपल 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, यहां लिख देंगे बैंक, क्योंकि इसको पेमेंट हो गया, बैंक अकाउंट। इसको बीइंग क्लेम सेटल, बीइंग क्लेम सेटल्ड, यानी ये इसका क्लेम भी सेटल हो गया दोस्त। अब हमारी जो 12वीं एंट्री 13वीं एंट्री बनती दोस्त, मान लीजिए अगर शेयर को फॉरफिट करना पड़ा, ठीक है, तो सिंपल एंट्री है दोस्त, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल
यहाँ पे थोड़ी सी आपको टफ दिखेगा, लेकिन जब सब सिखाओगे तो बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। जब तक आपको सम्स नहीं देखो तब तक नहीं मालूम पड़ेगा। बस यही एक एंट्री थोड़ा सा दिक्कत देती है, बाकी कोई एंट्री में दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कौन से शेयर को फॉरवर्ड करते हैं? जो शेयर पे कॉल सिग्नर रह जाता है, जो उसका शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हो पाता, यानी जिसका कॉल पैसा रिसीव नहीं होता है, कंपनी बोलती है भाई इसको फॉरफिट कर दो। एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर के हाथ में रहता है कि वो क्या कर सकता है, शेयर को फॉरफिट कर सकता है। इफ द शेयर इज नॉट, इफ द कॉल्स इज अनपेड, अगर कॉल्स अनपेड हुआ तो सूरज शेयर्स को क्या करेगा, फॉरफिट कर देगा, ठीक है। अब फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू होता है, यस फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू होता है, आइदर टू द सेम शेयर होल्डर और टू द एनी अदर शेयर होल्डर। फॉरफिटेड शेयर को भी रीइश्यू कर सकते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। कौन सा रिजर्व ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट ऑन शेयर फॉर विच ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, याद रखिए वर्ड, प्रॉफिट ऑन शेयर फॉर विच ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां लिख देंगे दोस्त पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब वो चाहे फर्स्ट कॉल का एरियर हो चाहे सेकंड कॉल का हो, जो भी रहेगा, टू शेयर फॉरफिचर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। एक तो एंट्री हो गया बीइंग शेयर्स आर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड। अब मान लीजिए अगर ये शेयर 10 रुपए का होता है दोस्त, टोटल वैल्यू लेने का 10 रुपए का, यानी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए लेने का 10 रुपए 10 रुपए, जितना कॉल शेयर यहां डाल दिए 10 में से 2 माइनस कर, जितना बच गया ये 8 रुपए हो जाएगा। देख लीजिए अगर 10 रुपए का कॉल से था, ठीक है, यानी टोटल वैल्यू नॉट कॉल्स लेने का, 10 रुपए का टोटल जो वैल्यू उसका फेस वैल्यू था वो लेने का 10 रुपए था, तो 10 रुपया डालेंगे। जो कॉल शेयर की वैल्यू होगी, समझो पर शेयर 2 रुपया है, तो 2 रुपया मैं इससे एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि मैं एक ही शेयर को दिखा रहा हूं, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल हो रहा है, ठीक है। तो 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए पूरा यहाँ डाल दिया, 2 रुपए का कॉल शेयर, बचा हो क्या होगा आपको, प्रॉफिट शेयर फॉरफिचर में चले जाएगा। अब अगर मान लीजिए शेयर फॉरफिटेड रीइश्यू हुआ तब क्या होगा? तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीइश्यू हुआ तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू, ये जो वर्ड है दोस्त नीचे लाने का, शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ये शेयर आपका 9 रुपए में रीइश्यू हुआ, तो 9 रुपए यहां पे आएगा दोस्त, ठीक है, ये 9 रुपए यहां पे आ जाएगा, यहां पे आपका जो ये 10 रुपए यहां था वही रहेगा, 10 में से, यानी 10 रुपया था, 10 में से 9 रुपया का रीइश्यू हुआ तो 1 रुपए का शेयर फॉरफिचर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यू, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, ठीक है। एंड देन लास्ट एंट्री है दोस्त, अब देखिए जो भी शेयर फॉरफिचर से प्रॉफिट होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना है देखिए, ये 1 रुपया है और यहाँ देखिए 8 रुपया, देखिए सिंपल से दोस्त, यहाँ पे शेयर फॉरफिचर कितना 8 रुपए, यहाँ पे कितना 1 रुपया है, 8 रुपया क्रेडिट है, 1 रुपया डेबिट है, तो कितना प्रॉफिट होगा, खाली 7 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया ये कितना प्रॉफिट होगा दोस्त, ये 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। तो इस पर लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सो कैसा लगा दोस्त आपको पूरा जर्नल एंट्री, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लस अगर आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो सर तो फटाफट इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्त। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए दोस्त फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जितने दोस्त हैं दोस्त, वो एसवाई बीकॉम कर रहे हैं, टीवाई बीकॉम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी सबको ट्रांसफर कीजिए, बीबीआई, बीएमएस, बैम जो भी है सबको ट्रांसफर कीजिए, उनको भी इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। और उनको भी बोलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि जो नया वीडियो आता रहेगा दोस्त इससे रिलेटेड वो सब उनको फटाफट उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसे आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे दोस्त उसके आगे बस याद रखिए बेल आइकॉन है, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।